हाय एवरीवन, दिस इज़ आकर्षित। आई होप एवरीबडी इज़ इन गुड हेल्थ और आप सब तैयारी कर रहे हैं साथ में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। द नेक्स्ट लेक्चर इज़ अबाउट द MCQs। मैंने आपको कहा था कि विल बी डूइंग MCQs रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उनके रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं वो मैंने प्रिपेयर किए हैं, और इसके साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ जो मैंने नहीं कवर किए तो उनको मैंने MCQs के थ्रू कवर किया है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following are the sources of methane emissions? First, landfills. Second, termites. Third, natural wetlands. Fourth, gas drilling. Methane emissions हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था. तो देयर आई हैव टोल्ड यू natural wetlands are the largest source of methane emission. They contribute around 21.3% of methane, which is followed by rice paddies. Then it is biomass burning, then electric fermentation, and then termites, landfills and gas drilling. These all are the sources of methane emission. तो हमारा आंसर होने वाला है D 1, 2, 3 and 4. Now moving to the second question. Consider the following statements with reference to greenhouse gases. First statement is carbon dioxide accounts for more than 50% of natural greenhouse effect. Actually the first statement is incorrect. It is not carbon dioxide but water vapor which accounts for 60 to 70% of greenhouse gas. अब second statement है nitrous oxide has a capacity of trapping heat 300 times more efficiently than carbon dioxide. It is correct. Third is methane gas is emitted from paddy fields and coal mines, which is also correct. तो हमारा आंसर बन जाता है 2 and 3. Now coming to the third question. Which of the following substances can cause depletion of ozone layer? Carbon tetrachloride, methyl bromide, chlorodifluoromethane. Actually all of them can cause ozone depletion. तो हमारा आंसर बन जाएगा D 1, 2 and 3. Now the fourth question is slow blindness as a disease is primarily caused by option A thinning of ozone layer, B global warming and glacial melt, C mercury contamination in drinking water, D sudden drop in the temperatures in polar regions. अब स्नो ब्लाइंडनेस क्या होता है कि इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ UVB रेज हमारे आइज़ के कॉर्निया को इन्फ्लेमेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉर्निया परमानेंटली डैमेज हो सकता है। और UVB की इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज होगी? ओनली बिकॉज ऑफ थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। तो हमारा आंसर बन जाएगा A. Now coming to the fifth question. The term dirty dozen sometimes seen in news is related to A. IUCN list of 12 invasive alien species, B. 12 persistent organic pollutants under the Stockholm Convention, C. The 12 air pollutants displayed on Air Quality Index Board, and D. The 12 banned living modified organisms under Cartagena Protocol. So here the answer is B. The 12 persistent organic pollutants under the Stockholm Convention. Actually United Nations Environment Program ने 1995 में अपनी रिसर्च को एक्सपैंड किया था और इन्वेस्टिगेट करना चालू किया था हाईली टॉक्सिक POPs को। तो इनिशियली उन्होंने अपनी रिसर्च को 12 POPs पे रिस्ट्रिक्ट किया था और उन्हीं 12 POPs को हम डर्टी डजन्स कहते हैं। And the convention which aims to protect human health and environment from the effects of POP, it is Stockholm Convention. Now sixth question, consider the following statements regarding black carbon. First statement, it cools the atmosphere when it hangs above the clouds. Second, it increases albedo when it is deposited on the ice. C, it has an atmospheric lifespan of a few weeks only. Now let's look at the second statement of the question. ये कह रहा है कि albedo effect increase करेगा जब black carbon ice पे deposit होगा. Does that really happen? It doesn't. It decreases albedo. तो ये तो गलत होने वाला है. Third statement, it has an atmospheric lifespan of a few weeks only. That's very true. Now read the question carefully. It says which of the following statements given above is or not correct. तो एग्जाम में भी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वहाँ क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है कि आर द स्टेटमेंट्स करेक्ट या आर द स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। It cools the atmosphere when it hangs above the clouds. Again, it is true. Black carbon, when it is suspended in air, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है क्लाउड्स की फॉर्मेशन में। तो एज सच क्लाउड्स फॉर्मेशन की वजह से इट हेल्प्स टू ब्लॉक द सनलाइट, तो इट कूल्स द एटमॉस्फेयर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। तो हमसे पूछा गया है कि विच इज़ इनकरेक्ट, सो हमारा आंसर बन जाता है A. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. While the earth is looking at the 6th mass extinction, which is anthropogenic, the last 5 mass extinction episodes were due to natural causes. Consider the following statements regarding the past mass extinction episodes. First statement is the first mass extinction was the result of an asteroid impact.
It's a wrong statement. First mass extinction जो हुआ था, it was because of a severe ice age. Obviously first statement incorrect है, तो हमारा आंसर आ गया. फिर भी let's go through the next options. The fifth mass extinction episode happened around 65 million years ago. This is true. ये एक्सटिंक्शन जो था ये एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से हुआ था, जब डायनासोर्स अर्थ से वाइप आउट हो गए थे. थर्ड, द ट्रायसिक जुरासिक मास एक्सटिंक्शन हैज़ बीन लिंक्ड टू द आउटबर्स्ट ऑफ वोल्केनिज्म. दिस इज द फोर्थ मास एक्सटिंक्शन, और इसी के बाद अर्थ पे डायनासोर्स फ्लरिश किए थे. तो हमारा आंसर बन जाता है 2 and 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है. आई बिलीव यू कैन डू इट ऑन योर ओन. आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो मैंने आपकी क्लास में डिस्कस किया है, ये आप इजीली कर सकते हैं. आंसर इज सी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 10. द टर्म ग्रीन वॉशिंग इज समटाइम्स सीन इन यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए कोस्टल क्लीनिंग, बी एफॉरेस्टेशन, सी कार्बन ऑफसेट्स, डी इको फ्रेंडली पेंट्स. तो ग्रीन वॉशिंग मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था. जब कोई कंपनी या सोवरेन गवर्नमेंट अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से ज़्यादा चार्ज करती है ऑन द नेम ऑफ बीइंग एनवायरनमेंट कंप्लायंट, या फिर अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा इन्फ्लेट करती है प्रोक्लेमिंग टू बी एनवायरनमेंट कंप्लायंट, बट एक्चुअली वो एनवायरनमेंट कंप्लायंट होती नहीं है, तो उससे हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग. तो यहाँ हमारा आंसर बन जाएगा कार्बन ऑफसेट्स. कार्बन ऑफसेट मैकेनिज्म में कंपनीज जनरली खुद अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस नहीं करती हैं और अपनी कार्बन क्रेडिट्स को परचेज कर लेती हैं. सिमिलरली कार्बन क्रेडिट्स की जब काउंटिंग होती है तो कंपनी जो परचेज कर रही है कार्बन क्रेडिट्स वो भी अपनी जुरिस्डिक्शन में काउंट करेगी, और जो कंपनी ये कार्बन क्रेडिट्स को सेल कर रही है या कोई कंट्री सेल कर रही है वो भी अपनी जुरिस्डिक्शन में इनको काउंट करती है. तो एज ए रिजल्ट देयर इज अ डबल काउंटिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट्स. एज सच द होल प्रोसेस विच सीम्स टू बी एनवायरमेंटली कंप्लायंट इज नॉट. एज सच carbon offsets can be considered as greenwashing. Now coming to the next question, consider the following statements with regard to International Drought Resilience Alliance IDRA. First one, the alliance is convened by Food and Agriculture Organization. Second, India is part of the International Drought Resilience Alliance. पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अलायंस को लॉन्च किया था स्पेन और सेनेगल ने. एक्चुअली अलायंस को लॉन्च किया गया था UNFCCC COP27 शर्म एल शेख कॉन्फ्रेंस में, और इसका एम था बाय 2030 वी हैव टू मेक लैंड resilient to drought and climate change. Second statement is India is part of IDRA. ये भी गलत है, India is not part of IDRA. तो हमारा आंसर बन जाएगा D, neither one nor two. Now coming to the next question. Consider the following statements regarding the Global Geothermal Alliance. First statement, it aims to achieve a 5-fold growth in the installed capacity for geothermal power generation by 2030. Second, it was launched at the United Nations Climate Change Conference in Glasgow, COP26. Now, second statement here is incorrect. Global Geothermal Alliance ये पेरिस में लॉन्च हुआ था, ग्लासगो में नहीं. Coming to the first statement, it is correct. Global Geothermal Alliance का जो एम है, it is to increase the share of geothermal energy by 5 times in areas of geothermal power generation and 2 times in the area of direct use of geothermal heat. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड गलत है, तो हमारा आंसर बन जाता है ए. अब कमिंग टू द 13th क्वेश्चन. 13th क्वेश्चन ये प्रॉपरली मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो इसका आंसर है डी. नाउ कमिंग टू द 14th क्वेश्चन. Recently, the Prime Minister of India announced that India has achieved its target of blending 10% sugarcane extracted ethanol in petrol. In this context, which of the following is or advantages of ethanol blending? First statement, reduction in import of petroleum. Second, increase farmers' incomes. Third, reduce emission of carbon monoxide. It's pretty easy, क्योंकि ethanol blending की वजह से imports of petroleum reduce होंगे, क्योंकि हम 10% ethanol यूज़ करेंगे. सेकेंडली, शुगर केन एक्सट्रैक्टेड एथेनॉल है तो उससे फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होगी. एंड थर्ड, क्योंकि हम 10% एथेनॉल यूज़ करेंगे तो शेयर ऑफ पेट्रोल वुड फॉल, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन भी रिड्यूस होंगी. 15th क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट एम्स टू कनेक्ट मोर देन 80 countries, allowing surplus renewable energy to be sent to locations with a deficit. It is true. It was launched by India in collaboration with USA. This statement is incorrect. It was not launched by India in collaboration with USA, rather it was launched by India in collaboration with UK. Next question. Consider the following statements regarding ocean acidification. First statement, the pH of sea water gets reduced to below 7 due to ocean acidification. It's incorrect. Ocean acidification, I've already told you कि pH गिर रहा है,
लेकिन pH अभी भी ओशन वाटर का बेसिक ही है, इट्स मोर देन 7, बट सिंस द pH इज फॉलिंग वी से दैट ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है. सेकंड, द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय ओशन रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द ओशन. ये पूरी केमिकल रिएक्शन मैंने आपको क्लास में डिस्कस की है, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है. एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट. नाउ व्हेन वी लुक एट द ऑप्शंस, अभी सीधा सवाल बहुत सिंपल हो चुका है, तो ऑप्शन इसका बी होना है, 3 ओनली. बट स्टिल वी नीड टू लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट, saturation horizon of carbonate is shallowing as a result of ocean acidification. अब ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि कार्बोनेट आयंस जिनकी वजह से जो सी एनिमल्स या सी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी शेल्स क्रिएट करते हैं, ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से कार्बोनेट आयंस जो हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से थिनिंग ऑफ शेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द ओशंस वो भी हो रहा है, और साथ में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं. तो इट्स वेरी ट्रू, कार्बोनेट आयन का जो सैचुरेशन होराइजन है वो शैलो हो रहा है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. विद रेफरेंस टू द ग्लोबल मीथेन प्लेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ UNEP टू रिड्यूस ग्लोबल मीथेन एमिशंस. सेकंड, इंडिया इज नॉट येट ए सिग्नेटरी टू द प्लेज. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ग्लोबल मीथेन प्लेज. इट वाज लॉन्च्ड बाय US एंड यूरोपियन यूनियन, और इसका एम था टू कट 30% मीथेन एमिशंस बाय 2030. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट and second statement says India is not yet a signatory, और ये स्टेटमेंट सही है, India is not a signatory. अगला क्वेश्चन, with reference to the ozone depleting substances consider the following statements. First, volcanoes and ocean ecosystems act as natural sources of ODS. ये सही है. कार्बन टेट्राक्लोराइड and methyl chloroform are examples of ODS. ये भी सही है. The Montreal Protocol on ODS is yet to achieve universal ratification. Now this statement is incorrect. मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यूनिवर्सली रेटिफाइड है. सो आंसर बिकम्स A, 1 and 2 only. Next question, which of the following are India's updated intended nationally determined contributions? First, reducing the emission intensity of its GDP by 65% by 2030 from 2005 level. This statement is incorrect. हमारा जो updated NDC है वो है reducing the emissions intensity of its GDP by 45%, not 65% by 2030. Second statement is achieving 50% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel-based energy resources by 2030. This is true. Third statement is creating an additional carbon sink of forest and tree cover of 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent, which is again true. तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 and 3. Now the next question is, consider the following statements regarding coal gasification. First, it is the process of converting coal into synthesis gas, जिसको हम सिन गैस भी कहते हैं. सिन गैस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, और बहुत छोटी मात्रा में बाकी गैसेज होती हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट, इट इज रिगार्डेड एज ए क्लीनर कोल टेक्नोलॉजी व्हेन कंपेयर्ड टू कोल कंबशन. अगेन इट इज ट्रू. ट्रेडिशनल कोल बर्निंग से सिन गैस ज़्यादा एफिशिएंट है. थर्ड, कोल गैसिफिकेशन कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट्स ऑफ यूरिया, विच इज़ ट्रू. कोल गैसिफिकेशन से हम सिन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं. तो हमारा आंसर आ जाएगा D, 1, 2 and 3. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कंट्रीब्यूट टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन एट द पोल्स? फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स. सेकंड, स्प्लिटिंग ऑफ पोलर वोर्टेक्स. थर्ड, इंक्रीज इन द टेम्परेचर एट द पोल्स. तो हमने देखा था कि ओजोन डिप्लीशन में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की फॉर्मेशन के लिए हमने देखा था कि पोलर वोर्टेक्स का होना ज़रूरी है. पोलर वोर्टेक्स होगा तभी वो कोल्ड कंडीशन प्रिवेल करेंगे. तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. और अगेन, इंक्रीज इन टेम्परेचर एट द पोल्स, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जितना ठंडा होगा, जितनी कूल कंडीशंस होंगी, जितना कोल्ड होगा, उतना ये असिस्ट करेगा पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की फॉर्मेशन में और ओजोन डिप्लीशन में. तो हमारा आंसर होगा A. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with reference to the Kigali Amendment. First, it amended the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer. Second, under this agreement, India will complete its phase down of HFCs by 85% in 2025. Now, the first statement is correct. Kigali Amendment जो था, it amended the Montreal Protocol. It is true. Now, coming to the second statement, India will complete its phase down of HFCs by 85% in 2025. No, it is not correct.
इंडिया विल कंप्लीट इट्स फेज 2 बाय 2045 नॉट 25। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED of 1992, consider the following statements. First, Rio Declaration is a legally binding document that provides guidelines for the conservation and sustainable development of forestry. This is obviously an incorrect statement. It is not legally binding. The number 21 in Agenda 21 denotes 21 targets for sustainable development. Again, it is incorrect. Number 21 in Agenda 21, it denotes 21st century, not 21 targets. The Convention on Biological Diversity was open for the signature during the conference. This is true. मैंने आपको बताया था कि UNCED यानी रियो डिक्लेरेशन के 6 आउटकम्स थे, उनमें से एक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी था. तो yes, it was open for signature during the conference. Next question, with reference to ozone, consider the following statements. First, ozone is a greenhouse gas in the troposphere. It is true. Second, absorption of UVB by ozone in the stratosphere reduces its amount reaching the Earth's surface and thus its harmful effects. Again, it's true. Third, ozone depletion in Arctic region is more severe than over the Antarctic region. No, this is not correct. Antarctic में ज़्यादा severe है and to such an extent that Antarctic में ये annual phenomena है. So this is an incorrect statement. तो हमारा आंसर आ जाएगा A, 1 and 2 only. Next, with reference to hydroelectric power in India, consider the following statements. India is the second largest producer of hydroelectric power in the world. गलत है ये. India is the 5th largest. Second, Bhakra hydroelectric power project is India's largest hydroelectric power plant. Again, incorrect. Tehri Dam in Uttarakhand, it is the largest power plant in India. Third, as per the new hydroelectric power policy, only smaller projects of less than 25 megawatt capacity were categorized as renewable energy. Again, this is incorrect. As per the new hydroelectric policy, even the large hydro projects, they are categorized as renewable energy. अब क्वेश्चन में पूछा है which of the following statements given above is or not correct. हमें not correct देखना है. तो not correct यहाँ पे तीनों incorrect हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा D, 1, 2 and 3. Now let's move to the next question. Consider the following statements regarding State of Global Climate Report 2023. First, it is released by UNEP. Second, it gives the details of climate indicators like temperature, ocean heat, and it complements the IPCC. Third, sea levels along entire Indian coast are rising slower than the global average. Now, first statement is it is released by UNEP. ये गलत है. इसको वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, जिसे हम WMO के नाम से जानते हैं. तो WMO रिलीज करता है इसे, not UNEP. Now the second statement is correct. It does the following job. Now coming to the third statement. It says sea levels along entire Indian coast are rising slower than the global average. It is again incorrect. They are rising faster than the global average. तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 only. Next question. Consider the following statements regarding NDC synthesis report. First, it is released by UNFCCC. It is correct. Second, according to this report, cumulative emissions in 2020 to 2030 are likely to use up 86% of remaining carbon budget. Again, this is true. तो हमारा आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2. ऐसी रिपोर्ट्स में आई डोंट थिंक जेके पीएससी इतनी डिटेल में जाके पूछेगा कि रिपोर्ट का कंटेंट क्या है. आपको बस ये याद रखना है. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए फ्रेम किया था कि आपको ये याद रखना है कि ये रिपोर्ट्स कौन रिलीज कर रहा है. नेक्स्ट, हु रिलीजेस वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स प्रोजेक्ट, और इसका आंसर है यूनेस्को एंड IUCN. अगला सवाल है फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, यानी फास्ट इनिशिएटिव जो है, it is an initiative launched during COP27 by which organization? तो इसका आंसर है FAO, Food and Agriculture Organization. Consider the following statements regarding climate change performance index. First, it is released by German Watch. सही है. Second, Denmark has topped the rankings. This is wrong. Actually, इस इंडेक्स में फर्स्ट 3 स्लॉट्स जो रहते हैं वो हमेशा वेकेंट रहते हैं, सो एज टू कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड कि हम जितना भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं वो अभी काफ़ी नहीं है. तो फर्स्ट 3 स्लॉट्स हमेशा इस रिपोर्ट के वेकेंट रखे जाते हैं. तो 4th स्लॉट पे डेनमार्क आता है. थर्ड स्टेटमेंट, इंडियाज रैंक हैज़ इम्प्रूव्ड दिस ईयर बाय 2 spots. अगेन दिस इज करेक्ट. तो हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 2. नेक्स्ट, V20 is a grouping often seen in news is related to which of the following? A. It's a group of 20 countries in southern hemisphere to cooperate among themselves with respect to poverty alleviation.
Second, it's a group of 20 countries in Europe to provide for energy security in Europe. Third, it's a group of countries systematically vulnerable to climate change. D, it is an initiative of ASEAN plus 6 for safeguarding trade routes in Pacific. नो डी तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो कि ये ज़बरदस्ती का ऑप्शन बनाया गया है, क्योंकि एशियन प्लस 6 में चाइना भी आता है, तो सेफ गार्डिंग ट्रेड रूट्स इन पैसिफिक, तो चाइना का इंक्लूजन उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डी तो इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो. नो कमिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, 20 कंट्रीज सदर्न हेमिस्फीयर में अगर ग्रुपिंग भी बनाते हैं तो पॉवर्टी एलिविएशन उनसे हो नहीं पाएगी, क्योंकि मेजरली जो रिच कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो नॉर्थ ऑफ द हेमिस्फीयर हैं, तो अगेन ये भी गलत होने वाला है. नो बी इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुपिंग है, तो अलग से V20 नाम की ग्रुपिंग का कोई मतलब नहीं बनता जो एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी. सो द आंसर हैज़ टू बी सी. इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज सिस्टमैटिकली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज एंड मोर ओवर कोई 20 कंट्रीज की ग्रुपिंग नहीं है, इट कंसिस्ट ऑफ 58 कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इनिशिएटिव्स वाज वर लॉन्च्ड इन UNFCCC COP27 शर्म एल शेख? पहला, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडरशिप पार्टनरशिप. दूसरा, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट. तीसरा, फर्स्ट मूवर्स कोalition. और चौथा, लीड IT. तो इनिशिएटिव्स जो शर्म एल शेख में लॉन्च हुए थे वो थे फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडरशिप पार्टनरशिप और सेकंड मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट. फर्स्ट मूवर्स कोalition और लीड IT ये पहले से हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 2. नाउ लेट्स लुक कि ये इनिशिएटिव्स क्या हैं और किसने लॉन्च किए थे. फर्स्ट वन, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडरशिप पार्टनरशिप, तो इसे लॉन्च किया था UK एंड वर्ल्ड लीडर्स फ्रॉम 26 कंट्रीज, जिसमें इंडिया नहीं था. तो आपको ये याद रखना है, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडरशिप पार्टनरशिप. तो इसका एम है कि फॉरेस्ट लॉस और लैंड डिग्रेडेशन को हमें रोकना है बाय 2030. सेकंड, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इसका एम है to educate and spread awareness about role of mangroves in curbing global warming. And yes, India is a member of Mangrove Alliance for Climate और इसे UNFCCC COP27 में लॉन्च किया था इंडोनेशिया और UAE ने. थर्ड वन, फर्स्ट मूवर्स कोalition, ये USA और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया था COP26 में और इसका एम था to decarbonize most intensive carbon sectors which are responsible for 30% of global emissions. And the fourth one, लीड IT, इसे इंडिया और स्वीडन ने लॉन्च किया था 2019 में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अबाउट मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट. ये मैंने अभी डिस्कस किया आपसे. इट इज़ नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ UAE एंड इंडिया, इट इज़ एन इनिशिएटिव लेड बाय UAE एंड इंडोनेशिया. अगेन इट वॉज लॉन्च एट शर्म एल शेख, सही है. इट्स एम टू प्लांट मोर मैंग्रोव्स एंड इंक्रीज नेट एरिया अंडर मैंग्रोव्स टू 100 मिलियन हेक्टर्स बाय 2030. बिल्कुल गलत, तो हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी. ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने पास्ट लेक्चर्स में, तो आप ये याद रख लीजिए, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है इन्हीं सभी 5 कन्वेंशंस के लिए. तो आंसर आ जाएगा D 1, 2, 3, 4 and 5. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली. फर्स्ट, इट वॉज फाउंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ UN कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन 1972. गलत है ये. इट वॉज फाउंडेड इन 2012 आफ्टर completion of 20 years of Rio Conference. Second, the Assembly meets biennially to set priorities for global environment policies. This is correct. Third, the Assembly is the world's highest level decision-making body on the environment with a universal membership of 193 member states. This is also correct. तो हमारा आंसर आ जाएगा B. Next question, in which among the following initiatives India is not one of the members? फर्स्ट मूवर्स कोalition, इंडिया इज़ ए मेंबर, तो ये गलत हो जाता है. मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इंडिया इज़ ए मेंबर, तो ये भी गलत हो जाता है. थर्ड, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप, इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर, तो ये सही है. फोर्थ, इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस, यस इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर, ये भी सही हो जाता है. तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 and 4. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क. First, it provides tailor-made technology solutions to any country for reducing climate change. This is wrong. It is not for any country, it is for developing countries only. Second, it is the implementation arm of technology mechanism of the United Nations Framework Convention on Climate Change, जिसे हम UNFCCC भी कहते हैं. ये सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा B, 2 only.
Now next question. With reference to the Special Climate Change Fund, consider the following statements. The fund was first established in United Nations Framework Convention on Climate Change conference held in Paris in 2015. This is wrong. ये 2001 में ही बन गया था. Second, the fund is managed by Global Environment Facility. It is true. Third, currently the fund aims to assist only small island developing states to develop their adaptation capabilities to climate change. Again, this is incorrect. It is not only for SIDs but also for vulnerable countries. One thing, जब भी किसी क्वेश्चन में एक पॉजिटिव कोनोटेशन रहे, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक पॉजिटिव कोनोटेशन है, तो वहाँ पे ओनली जैसे वर्ड्स जो होते हैं जो स्टेटमेंट को कंटेन करते हैं वो स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होते हैं. नाउ अगेन दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस ट्रिक वर्क्स. तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ जाएगा 2 ओनली. नेक्स्ट, which of the following best describes the term e-fuels sometimes seen in use? A. Battery induced energy used in electric vehicles. B. Hydrogen fuel produced using electricity. C. The energy consumed by computers in the process of Bitcoin mining. D. Crude oil refined using the zero human contact technology. तो अगेन इस क्वेश्चन में आप 2 स्टेटमेंट्स इजीली रिमूव कर सकते हो. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट कि बिटकॉइन माइनिंग में जो कंप्यूटर्स एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो तो ई फ्यूल्स नहीं होने वाले, क्योंकि ई फ्यूल साउंड्स अ बिट फ्यूचरिस्टिक और एनर्जी कंजम्पशन बाय बिटकॉइन माइनिंग ये इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है. तो समथिंग विच इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैन नॉट बी फ्यूचरिस्टिक. तो सी तो गलत है. नाउ डी, क्रूड ऑयल रिफाइंड यूजिंग जीरो ह्यूमन कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी, ये अगेन इट इज़ देयर टू कन्फ्यूज यू. तो आई विल डेफिनेटली रिमूव दिस इन द एग्जामिनेशन. तो एग्ज़ाम में आप कभी भी अगर 2 ऑप्शंस तक किसी सवाल को रिड्यूस कर देते हो तो आपको उस सवाल पे गेस लेना ही चाहिए. यू मस्ट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. अब इस सवाल में आंसर है बी. ई फ्यूल्स आर नथिंग बट हाइड्रोजन फ्यूल प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. एक्चुअली हम इसमें क्या करते हैं कि हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और फिर हम कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन को विथ कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसाइज फ्रॉम एटमोसफेयर एंड दिस वी कंप्लीट ए हाइड्रोजन फ्यूल सेल. एंड नाउ दैट कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, so we say that these are e-fuels. Now the final question of the session, which of the following statements is or correct regarding different aspects of carbon credit trading in India? First, carbon credit is a permit allowing the emission of a predetermined amount of greenhouse gases per permit. Again ये सही है. कार्बन क्रेडिट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हर सेक्टर को हम प्रीडिटरमाइंड कार्बन एमिशंस कुछ कोटास प्रोवाइड करते हैं, और उस कोटा के ऊपर वो अगर कार्बन एमिट करते हैं तो उन्हें कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोक्योर करने पड़ते हैं उन इंडस्ट्री से जो उन कोटा से नीचे एमिट करते हैं. सेकंड, द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई ए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम. अगेन दिस इज ट्रू. जिस स्कीम को हम पैट स्कीम भी कहते हैं. थर्ड, एट प्रेजेंट a carbon credit certificate is issued under the perform, achieve and trade scheme of the central government. This statement is incorrect. पैट स्कीम के अंडर हम कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स नहीं देते बल्कि हम एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स देते हैं. तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 and 2 ओनली. नाउ दिस कंप्लीट्स अवर लेक्चर. आई होप आप सबको ये समझ आया होगा. अब इसके सोल्यूशंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसके सोल्यूशंस मिल जाएंगे आप लोगों को. नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्लाइमेट चेंज टॉपिक. Now in the next lecture I am thinking that we start with science and technology so that एक वीक में हम 2 सब्जेक्ट्स कवर करें. One day we will cover science and technology and on the other day we will be taking the topics of environment and climate change. So once again thanks for listening and meanwhile you keep studying.